Hello students, today we'll solve question number 11 and government textbook unsolved question number 2, page number 55. तो all students take out your notes और जिसके पास notes नहीं है वो निकाल लो government textbook. तो without wasting your time, let us start the question. Questions काफी बड़ा है तो ज़्यादा time waste नहीं करेंगे हम लोग. From the following tribunals of Messrs. Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading and profit and loss account for the ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Stock as on 1st April 2018, opening stock, trading account debit side. Building, balance sheet asset side. Carriage, कुछ बोला नहीं तो always carriage inward, trading account debit side. Factory insurance, trading account debit side. Postage, admin expense, P&L debit. Bills receivable, assets. Sundry debtors, assets. Return inward, less from sales. Purchase, trading account debit side. Audit fees, profit and loss account debit side. Loose tools, assets. Manufacturing expenses, trading account debit side. Electric charges, profit and loss account debit side. General expenses, profit and loss account debit side. Export duty, goods बेचने का खर्चा, profit and loss account debit side. Cash in hand, assets. Bank balance, assets. Conveyance, goods बेचने का खर्चा, profit and loss account debit side. Furniture, assets. Salaries, admin expense, P&L debit. Rent, rates and taxes, again admin expense, P&L debit. Drawings, partners current account debit side. Sundry creditors, liability. Sales, trading account credit side. कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. क्यों सर? बिकॉज कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड है. यहाँ पे कैपिटल डायरेक्टली कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग सैलरीज, लायबिलिटी. बिल्स पेबल, लायबिलिटी. रिटर्न आउटवर्ड, लेस फ्रॉम परचेज. करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे हम कैपिटल एक बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद एडजस्टमेंट. Mitesh and Mangesh share profit and losses in the ratio of 3:1, means 3/4 and 1/4. 3 plus 1, 4. So 3/4 and 1/4. Partners are entitled to get commission 1% each. Each means दोनों पार्टनर को मिलेगा, मितेश को भी और मंगेश को भी, ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. तो जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक एडजस्ट हम नहीं कर सकते. इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है और कमीशन किसको मिल रहा है? पार्टनर्स को मिल रहा है. तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस 400, कैरेज फॉर 600. आउटस्टैंडिंग मींस ऐड टू ऑडिट फीस, ऐड टू कैरेज, और कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है हमारे लायबिलिटी है तो कहां पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500. नाउ बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में? 48,500. अब नया वैल्यू कितना है? 46,500. तो 2,000 से वैल्यू कम हो रहा है, और वैल्यू कम हो रहा है तो क्या है सर? डेप्रिसिएशन. तो लेस फ्रॉम बिल्डिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. फर्नीचर इज डेबिटेड बाय 5%. अगेन डेप्रिसिएशन मींस लेस, तो लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. Provide interest on partners capital 2.5%. Sir, partners capital means always partners capital account. कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस. तो 1,50,000 पे 2.5%, it comes to 3,750. And Mangesh 50,000 पे 2.5%, it comes to 1,250. अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे कर रहा है? फर्म. किसको पे कर रहा है? पार्टनर्स को. तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है. ओके, तो P&L डेबिट. पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. गुड्स ऑफ हिज 9 were taken over by Mangesh for his personal use. अगेन गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, मींस ड्राइंग्स. तो whenever goods goes out, trading account is credited. तो trading account credit side and partners current account debit side. A write of 1,000 as bad debts and maintain RD 3% debtors. Again, less from debtors add to bad debts.
और बैड डेट्स माइनस करने के बाद अगेन क्या आएगा, आरडी आएगा। अगेन लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेट्स, तो डेटर्स पे दो एडजस्टमेंट है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द सम। ओके, सम काफी बड़ा है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इन द बुक्स ऑफ मितेश एंड मंगेश। स्टॉक एज ऑन 1st April 2020, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो 25,000। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, असेट, तो बिल्डिंग, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग कितना है 48,500, तो एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। बिल्डिंग के बाद कैरेज, कुछ बोला नहीं तो ऑलवेज कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो कैरेज, तो कैरेज दिया हम लोग को 1780। कैरेज के बाद फैक्ट्री इंश्योरेंस, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो फैक्ट्री इंश्योरेंस कितना है 2,700। फिर पोस्टेज, एडमिन एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो आएगा टू पोस्टेज, टू पोस्टेज, तो पोस्टेज इज 1,600। नेक्स्ट, टू पोस्टेज के बाद बिल्स रिसीवेबल, तो असेट्स, तो 5 लाइन छोड़ देंगे बाद में लिखेंगे, तो बिल्स रिसीवेबल अमाउंट इज 13,070, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में। सन्ड्री डिटर्स असेट्स, इस पे एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है तो इधर लिखते हैं सन्ड्री डिटर्स, तो द एडजस्टमेंट की लाइन 3 लाइन, तो सन्ड्री इज 52,200, तो 3 लाइन छोड़ना है, ये एक और ये 2 और 3। नाउ नेक्स्ट, डिटर्स के बाद रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न मींस जो बेचा हुआ गुड्स वापस आ रहा है, तो लेस फ्रॉम सेल्स, तो रिटर्न इनवर्ड कितना है सर 1,600, तो 1,600। नेक्स्ट परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड कितना है 68,900। नेक्स्ट ऑडिट फीस 1,800, कहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऑडिट फीस पे एडजस्टमेंट है सर, कौन सा है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस वाला है। ओके, तो कितना अमाउंट है, ओके कैरेज पे भी एडजस्टमेंट था वो हमने मार्क करना भूल गए, ओके मार्क कर लेते, तो कैरेज 1,780 आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है उस पर, ओके एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट है ऑडिट फीस, ऑडिट फीस हाउ मच, ऑडिट फीस इज 1,800, इस पे भी एडजस्टमेंट है, कौन सा सर, आउटस्टैंडिंग वाला, तो एक एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट है लूज शूज, लूज शूज 30,000, क्या हमारे लिए असेट है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लूज टूल, लूज टूल्स कितने सर 32,000। दूसरे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, गुड्स बनाने का खर्चा, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है 1,820, अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में। इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो आगे और फैक्ट्री नहीं दिया है तो ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है 2,600, आउटर कॉलम। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, तो टू जर्नल एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंसेस 3,400। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, गुड्स बेचने का खर्चा, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी अमाउंट है 1,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड असेट, तो कैश इन हैंड
कितना है 75,000। नेक्स्ट बैंक बैलेंस, बैंक बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस इज 29,000, तो 29,000। बैंक बैलेंस के बाद कन्वेंस, गुड्स बेचने का खर्चा, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो टू कन्वेंस कितना है कन्वेंस 4,100। कन्वेंस के बाद फर्नीचर असेट्स, इस पे एडजस्टमेंट है, हाँ सर एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर कितना दिया फर्नीचर 64,000, तो 64,000 एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद सैलरीज, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो टू सैलरीज, एडजस्टमेंट नहीं आउटर कॉलम में, कितना है सर 2,000। नेक्स्ट सैलरीज के बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कितना अमाउंट है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3,700। नेक्स्ट ड्राइंग्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट्स, तो टू ड्राइंग्स कितना अमाउंट है 1,200 and 2,200। by balance brought down, by balance brought down, by balance brought down, sorry, sundry creditors liability, sundry creditors liability। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी कितना है 38,000 आएगा 38,000। उसके बाद सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 1,75,000, इतना है बैलेंस 1,73,400, सॉरी यहाँ ही आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। नाउ नेक्स्ट है सर सेल्स के बाद कैपिटल बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, कितना है 1,50,000, 1,50,000 ओके एंड 50,000 कितना आएगा 2 लाख ओके। नाउ नेक्स्ट उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अगेन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना बना आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरीज ट्रायल बेस में दिया है तो उसका एक ही फिट आएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट बिल्स पेबल, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्स पेबल अगेन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, कितना है बिल्स पेबल 18,000 आएगा 18,000। इसके बाद क्या दिया है रिटर्न आउटवर्ड मींस लेस फ्रॉम परचेज, कितना आएगा 1,800, तो 1,800 ये आएगा 67,100। तो ये नेक्स्ट इसके बाद करंट अकाउंट, दोनों क्रेडिट साइड में दिया है तो कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो कहां पे आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। अकाउंट बनाया है तो कहां पे आएगा पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट साइड, कितना अमाउंट है 3,000 and 2,000 ओके।
कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे, करंट अकाउंट बनाए तो करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये हो गए हमारे ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग। तो लेट अस स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स। ओके, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ओके, वो तो शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है, क्या है 3:1 है। ओके, कमीशन का है 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, तो जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग प्रॉफिट निकाल नहीं सकते। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट दिया है? 23,700 एंड बैलेंस शीट असेट साइड क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 23,700। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग, ऑडिट फीस एंड कैरेज, कैरेज दिया है 600, तो एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग, कैरेज हाउ मच? 600, तो 1780 प्लस 600, ये हो गया 2380 एंड ऑडिट फीस इज 400, यहाँ पे भी आएगा एड आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे भी एड आउटस्टैंडिंग देते हैं। कितना है सर? 400, तो 400 इट कम्स टू 2200। तो एड टू एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्या है सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हेडिंग लिखे करना हम लोग को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है सर? पहले आएगा ऑडिट फीस और दूसरा है सर कैरेज, कैरेज। तो ऑडिट फीस कितना है? ऑडिट फीस इज 400 एंड कैरेज इज 600, तो दोनों टोटल आ गया 1000। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा एडजस्टमेंट दिया है? बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। ना बिल्डिंग का पहले वैल्यू कितना था? 48,500, नया वैल्यू कितना है? 46,500, तो वैल्यू कम हो रहा है, मींस डेप्रिशिएशन, तो लेस डेप्रिशिएशन, लेस डेप्रिशिएशन। अमाउंट इज सर 2000। नेक्स्ट फर्नीचर डिप्रिशिएशन अगेन लेस डेप्रिशिएशन, इसमें परसेंटेज नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये एट कितना परसेंट सर? 5%, 5%, तो 64,000 का 10% मीन्स 6,400 एंड 5% मीन्स 3,200, तो 64,000 माइनस 3,008 इट्स कम्स टू 60,800। ओके, तो 5 के बाद पसंद लिखना था हम लोग को, आएगा 5%। ओके, तो लेस फ्रॉम अ सेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिशिएशन ऑन, इस पे सर पहले क्या आएगा? बिल्डिंग और बाद में आएगा फर्नीचर, फर्नीचर। बिल्डिंग में था सर 2000 और फर्नीचर भी था 3200, दोनों मिलकर क्या हो गया 5200, तो ये हो गया हम लोग का टोटल। नाउ ये वो सिंपल एडजस्टमेंट था। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कितने परसेंट? 2%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे कितना परसेंट? 2.5, 10% मीन्स 15,000, 5% मीन्स 7,500, 2.5 मीन्स 3,750, से 50,000 का 10% मीन्स 5,000, 5% मीन्स
2,500 and 2.5% means 1,250. So interest on capital expense for the firm. So profit and loss account debit side. To interest on capital. पहले कौन सा है? मितेश और बाद में कौन है? मंगेश। मितेश पे कितना है? मितेश आया था 3750 और मंगेश 1,250। तो ये हो गया टोटल 5,000। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो P&L डेबिट और पार्टनर इनकम है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3750 and 1,250. Next adjustment, goods of rupees 9 were taken by Mangesh for his personal use. Means drawings है तो goods गया trading account credit side by goods withdrawn by किसने goods withdraw की है? मंगेश जी। by goods withdrawn by मंगेश। how much sir? 900 जाएगा 900। एंड ये ड्राइंग्स है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड 2 ड्राइंग्स, लेकिन बाजू में लिखना पड़ेगा। तो जब भी ड्राइंग्स गुड्स में हो तो भी लिखना पड़ेगा गुड्स। जो ड्राइंग्स ट्रायल में दिया है वो क्या है? ड्राइंग्स कैश में होता है। तो मैं मितेश में कुछ भी नहीं आएगा, मंगेश में आएगा 900। नेक्स्ट, राइट ऑफ 1,000 बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RD 3% ऑन डेटर्स। तो अगेन लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स तो आएगा लेस बैड डेब्ट्स ऑफ या न्यू बैड डेब्ट्स। कितना है सर? 1,000। यह आएगा 51,200 और फिर बैड डेब्ट्स माइनस करना है लेस RDD एट रेट 3%। ये आएगा 1,536। ओके, तो कैलकुलेट कर लेना, बहुत सिंपल है। तो 51,200 माइनस 1,536 कितना आएगा? 49,664। अगेन लेस फ्रॉम डेटर्स, ये भी लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स ओल्ड बैड डेब्ट्स दिया नहीं है तो छोड़ दो उसको, या पुट डैश। न्यू बैड डेब्ट्स दिया है, हाँ दिया है सर। कितना था? 1,000। न्यू ऑलरेडी 1,536 1,536। तो ये टोटल आता है 2,536। अब ORD भी दिया नहीं है तो उधर भी क्या करेंगे? डैश। तो ये भी आएगा 2,536। नाउ नेक्स्ट, तो सो सिंपल है, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेब्ट्स। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट ये है, PSR भी है। अब एक ही एडजस्टमेंट बचा है, कौन सा बचा है? एडजस्टमेंट 2, partners are entitled to get commission 1% each on gross profit. So let us calculate the gross profit. Okay, so trading account credits 1,98,000। trading account credit side चलेंगे 1,98,000, लिखते इधर 1,98,000। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड उसका टोटल कर लेते। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड इस यहाँ पे दिख रहा है 99,000, यहाँ पे आएगा 99,000। तो लेट्स ग्रॉस प्रॉफिट 1,98,000 माइनस 99,000 comes to 99,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट हाउ मच? 99,000।
तो डू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 99,000 और यहाँ पे भी सेम आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 99,000। इसका हम टोटल कर लेते सेम 1,20,000 आ जाएगा ना। हमको करना है कमीशन टू पार्टनर्स, तो आएगा टू कमीशन टू पार्टनर्स। ओके, दोनों को देना है, ईच बोला है दोनों को, मितेश एंड मंगेश। ओके, तो मितेश एंड मंगेश 1% है, तो 10% मीन्स 1 0 कम एंड 1% मीन्स 2 0 कम, तो 990 990, तो 990 मितेश को मिलेगा और 990 मंगेश को मिलेगा, तो 990 एंड 990, तो आएगा 1920, सॉरी 1980। कमीशन कौन दे रहा है? फॉर्म दे रही है, किसके लिए? पार्टनर्स को। तो फॉर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो पीएल डेबिट, और पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कमीशन, बाय कमीशन कितना आएगा? 990 एंड 990। तो ये हो गया हम लोग के सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गए। नाउ लेट अस कैलकुलेट ग्रॉस नेट प्रॉफिट। ओके, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज हाउ मच? 99,000 टोटल हम लोग का। ओके, तो क्रेडिट साइड इज 99,000, तो 99,000। नाउ टोटल ऑफ डेबिट साइड चेक कर लेते, डेबिट साइड। तो टोटल ऑफ डेबिट इज 35,316 यहाँ पे दिख रहा है, तो 35,316। तो 35,316, तो my net profit is 99,000 minus 35,316, तो my net profit is 63,684, तो net profit is 63,684। तो इसको डिवाइड करके में 3:1 में। ओके, तो करेंगे 60,684 डिवाइडेड बाय 4 into 1, सो फॉर्मूला देता हूं मैं, इक्वल टू तो आता है 15,846, तो यहाँ पे आएगा 15,846। ओके, ना इसका 63,684 डिवाइडेड बाय 4 into 3 इक्वल टू रहता है 47,763, ये आएगा 47,763। एक बार चेक कर ले हम लोग, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 40 प्लस 15,000। ओके, तो कुछ तो मिस्टेक है, डिवाइड बाय 4। ओके, यहाँ पे रॉन्ग लिखा था, 60,000 था, 684 था, 684, 15,921 था, तो 15,921। तो आ रहा है 60,684। नाउ नेट प्रॉफिट है, कहां पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। काफी लेंथी समय ये। ओके, और थोड़ा नेट भी स्लो चल रहा है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
क्या है सर? ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ये हो गया। कितने? 47,763 एंड 15,921। ओके, तो इसको बैलेंस करती, ओके 20,621। ओके, तो 20,621 माइनस 2,200 माइनस 900, ये आएगा 17,061। सेम वे 55,503 माइनस 1,200, ये आएगा 54,303। यहाँ पे आएगा 54,303 एंड 17,061, ये आ रहा है 71,364। तो अगेन मैंने फॉर्मूला देकर रखा हुआ है। तो इन दिस केस टोटल ऑफ बैलेंस हाउ मच? 3,30,634 cut as liability total and 3,03,064 total of liability side, asset side। ये हो गया हम लोग बैलेंस शीट टैली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। ओके, वैसे रिवीजन वाला समय काफी बड़ा सम है। ओके, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करो और भी सम प्रैक्टिस करो। तो स्टूडेंट्स को फिर से एक बार खुद बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा लेसन। Okay, तो again revise the things, understand the things. Okay, thank you.